السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فلک شیخ۔ دوستو، آج میں بتانے والی ہوں کہ شوہر کی نافرمانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عذاب رکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے کیا وعیدیں فرمائی ہیں اور کیا حدیثوں میں ذکر آیا ہے۔ تو چلیں بنا دیری کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی شب کثرت سے عورتوں کو جہنم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، عورتوں کے جہنم میں کثرت سے داخل ہونے کی یا جہنم میں ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، اس لیے وہ کثرت سے جہنم میں جائے گی۔ تو فرینڈز، یہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتایا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ تو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اگر پوری زندگی اپنے آدمی سے بھلائی دیکھے اور اگر اس سے کبھی کوئی کمی دیکھ لے تو پھر یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یعنی کہ اس کی نافرمانی کرتی، کوئی ایک چھوٹی سی غلطی پر پورے زندگی کا نکال کے رکھ دیتی کہ تم نے مجھے یہ نہیں کرے، وہ نہیں کرے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر بہت وعیدیں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گے۔ تو دوستو، فرینڈز، میری عزیزات، جہاں تک ہو سکے اپنے شوہر کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے تو وہ عورتوں کے حاکم ہیں، یعنی کہ ان کے نگہبان ہیں۔ ان کا مرتبہ اللہ نے اتنا بڑا رکھا قرآن مجید میں، فرمایا کہ آدمی جو ہے تو وہ عورتوں کے حاکم ہیں، یعنی کہ نگہبان ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور ساری ذمہ داری ان کے سر پر ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی عزت کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو آپ اپنا اندازہ لگائیے، اپنا جائزہ لیجئے کہ ہمارے شوہر ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، کہ ہم جنتی ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ آج کل تو عورتیں جہاں دیکھا جا رہا ہے وہیں پر شوہروں کی عزت کو تار تار کرتی ہے، شوہر سے زبان درازی کرتی ہے، منہ چلاتی ہے۔ اللہ ہماری ان سب بری عادتوں سے حفاظت فرمائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے شوہر کو برابر جواب دیا، اس کی عزت کو تار تار کیا، تو اللہ قیامت کے دن اس کی زبان کو 70 گز لمبا کرے گا اور اس زبان سے گلے کو لپیٹ دے گا۔ وہ روئے گی کہ اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اپنے شوہر سے زبان درازی کی، تو نے اپنے شوہر کو جواب دیا، تو نے اپنے شوہر کی بے عزتی کی، یہ اس کا عذاب ہے، یہ اس کا عذاب ہے۔ سوچو فرینڈز کہ کیا انجام ہوگا اس وقت ہمارا، کہ جب ہم اپنے شوہروں کو اس طرح سے برا بھلا کہتے، ان کی غیبت کرتے، ان کا بہت کچھ برا بولتے، ان کو آگے پیچھے بھی۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور میں اپنے ایک دم سادے انداز میں بیان کر رہی ہوں، مطلب بتا رہی ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، اور لوگوں کو حدیث کے ذریعے بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور بہت سے لوگ ایسے شوہر ہوتے جو ظلم کرتے، ستاتے، تو عورتیں بولتی ہاں عزت ان کی کرتے تھے ہم، جو مطلب اچھے رہتے تھے تو ہم عزت بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک اللہ کے بہت بڑے
वली थे, अभी मुझे एक वाक़या याद आया। तो बहुत बड़े वली थे, उनका नाम मिर्ज़ा मज़हर जाना जानी रहमतुल्लाह अलैह है। उनकी खानका लगती थी, मतलब ऐसे बहुत सारे उलमा कराम उनके सामने बैठा करते थे। तो एक दिन मतलब उनके निकाह के लिए मतलब लड़की ढूंढने का ऐलान हुआ, हज़रत ने मतलब शादी का इरादा किया। तो सारे गांव में ऐलान हुआ कि मतलब हज़रत निकाह करना चाह रहे हैं, उनके लिए लड़की देखी, उनका निकाह हो गया। फिर जिस दिन इनका निकाह हुआ, ये घर पर आधी रात हो गई, ये तब चले गए। ये इबादत ही में मशगूल थे। तो ये निकाह होने के बावजूद उस दिन ये आधी रात को चले गए। बीवी बड़ी गुस्से में लाल पीली हो गई और हज़रत को खड़े होकर गालियाँ देने लगी, बुरा भला कहने लगी। ये इसीलिए मुझसे शादी करके मुझे लेकर आए क्या, कि आधी आधी रात को तुम आ सको। अब वो अल्लाह के वली थे, तो आधी रात तक इबादत कर रहे थे और फिर उसके बाद घर पर चले गए। लेकिन औरत जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, समझ लो ऐसी ही थी वो बस। तो उसने अपने शौहर से बड़ी ज़बान दराज़ी की हज़रत से। फिर उसके बाद रोज़ाना ऐसे ही चलते रहा। वो औरत जो थी वो उनको आती, हज़रत आने के बाद बुरा भला कहती, गालियाँ वगैरह देती, मुझसे ऐसी शादी की, ये वो जो भी। तो अब ये आवाज़ जो है इनकी झगड़े की, ये पड़ोस वाली एक औरत सुन लेती है। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि हज़रत के मुरीदीन में से एक थी। तो उस औरत ने जब सुनी तो उसने अपने शौहर से कहा कि हज़रत को उनकी बीवी गाली देती है, देखो पूरे गांव में उनकी इज़्ज़त है और बीवी से मतलब वो कुछ भी नहीं कहते वगैरह, खामोशी से सुनते रहते हैं। तो उस मतलब औरत ने जो सुना उसने अपने शौहर को बताया। तो उसके शौहर ने कहा कि तुम ये बात किसी से मत कहना। लेकिन औरतों के अंदर जो आदत होती है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उस औरत ने भी ऐसे ही कर दिया। पूरे गांव में बात आग की तरह फैल गई कि हज़रत की बीवी उन्हें खड़े होकर गालियाँ देती है, बुरा भला कहती है। अब जब दूसरे दिन हज़रत का दरबार लगा, लोग वहाँ पर बैठे, तो लोग जब वहाँ बैठे तो किसी की हिम्मत तो नहीं हो रही थी। लेकिन एक शख्स खड़े हुआ और कहा कि हज़रत हमें मालूम पड़ गया कि आपकी बीवी आप पर जुल्म करती है, सताती है और बुरा भला कहती है, आप उसे छोड़ दीजिए और आप उसे तलाक दे दीजिए। हज़रत गुस्से में आ गए, क्योंकि तलाक देना जायज़ है, लेकिन अल्लाह की पसंदीदा नापसंदीदा चीज़ों में से एक तलाक है। तो हज़रत गुस्से से कहा कि वो भले ही मुझे बुरा भला कहती है, गालियाँ देती है, मैं उस पर सब्र करता हूँ और अल्लाह इसी वजह से मेरे दर्जे को बुलंद कर रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये एक वाक़या मैंने इसलिए बताया कि अगर शौहर जालिम है और औरत उस पर सब्र करती तो अल्लाह औरत के दर्जे को बुलंद करेगा, और अगर औरत जालिम है और आदमी उस पर सब्र करता है तो अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका शौहर जालिम है, जुल्म करता, सताता, कमाता नहीं, जो भी आपका रीज़न हो जिसकी वजह से आप बदतमीज़ी करते हो, तो थोड़ा रुक जाओ और संभल जाओ और कोशिश ये करो कि जहाँ तक हो सके नरमी और प्यार मोहब्बत से इसको सुलझाया जाए। और प्यार मोहब्बत से दिल तो क्या पत्थर भी पिघल जाते हैं। और कोशिश ये करें कि अपने शौहर का अदब करे, एहतराम करे, प्यार मोहब्बत से समझाए। फ्रेंड्स, मुझे और एक वाक़या यहाँ पर याद आ रहा है प्यार मोहब्बत से समझाने के ऊपर, मैं बताती चलो आपको भी। एक बीवी थी जिसका शौहर बड़ा जालिम था। तो वो लड़की अपने शौहर को छोड़ छाड़ के अपने वालिदैन के घर पर आ जाती है। वालिदैन के घर पर आती है और फिर उसके बाद मतलब गांव में एक दिन ऐसा होता है कि हज़रत कोई आ जाते हैं और कहते हैं कि मतलब उनको मालूम पड़ जाता है उस बीवी को कि एक अच्छे हज़रत आए हैं, चलो जाकर मिलते हैं। फिर वो जब जाकर मिलते हैं उनसे, तो हज़रत से कहती है कि हज़रत, मेरे जो शौहर है वो बड़े जालिम है, मुझसे जुल्म करते, मैं उन्हें छोड़कर आ गई हूँ, तो कुछ आप ऐसा
तावीज़ वगैरह दे दीजिए कि मैं मतलब वो मुझसे मोहब्बत करे, मैं उनसे अच्छे से रहे, हम लोग ज़िंदगी गुज़र बसर कर सके। तो हज़रत ये कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें उस तावीज़ बनाने में शेर के बाल लगेंगे, आपको वो बाल लेकर आना होगा। तो बीवी कहती है, वो औरत कहती है ठीक है मैं वो बाल लेकर आ जाऊंगी। फिर एक दिन वो औरत जंगल में जाती है शेर के बाल लाने के लिए, और फिर क्या करती है, एक अच्छा बड़ा गोश्त का समझो गोश्त का अच्छा एक लोथड़ा लेकर जाती है, गोश्त लेके जाती है अच्छा ही, और उस शेर को डाल देती है। ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन डालती है और अपना चेहरा नहीं बताती। फिर चौथे दिन ऐसे ही वो गोश्त डाल देती है और फिर हल्की सी झलक अपनी उस शेर को बताती है और वहाँ से चले जाती। फिर ऐसे ही रोज़ थोड़ा थोड़ा झलक अपनी बताती है और वहाँ से गोश्त उसको डाल डाल कर चले जाती। फिर उसको और एक दिन गोश्त डालती, थोड़ा उसके नज़दीक जाती, वहाँ खड़े रहती, वहाँ से वापस चल जाती, फिर और गोश्त डालती और फिर उसके बाद नज़दीक जाती प्यार से। अब वो शेर पहचान चुका था उसको, इसलिए वो नज़दीक जाने पर उससे कुछ भी नहीं कहता। उसको लगता कि ये मुझे गोश्त डालने के लिए आई है, ये मेरी खैर ख्वाह है, वो ये मुझे तकलीफ़ नहीं देगी, इसलिए शेर भी उसे कोई तकलीफ़ नहीं देता था। तो ये औरत उसके नज़दीक गई, उसको गोश्त डाला एक दिन और फिर उसके सर पर हाथ फिराया और आहिस्ता से उसके चंद बाल निकाल कर ले आई। हज़रत के पास दिए, हज़रत ये मैंने बाल लेकर आई हूँ, शेर के आपने कहा था कि मोहब्बत मियाँ बीवी की मोहब्बत में जो तावीज़ आप बनाने वाले हैं ये बाल उसके लिए लगेंगे, तो मैं ये बाल लेकर आई हूँ। तो हज़रत कहते हैं कि इन बालों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब औरत बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि हज़रत आपने कहा था तो मैं अपनी जान पर खेल कर ये बाल लेकर आई और आप अभी कह रहे हो कि इनकी ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत कहते हैं खातून, आप एक जानवर को प्यार और मोहब्बत से बदल कर उसके बाल लेकर आ सकती है, तो जब आपका शौहर तो एक इंसान है, तुम उसे बदल सकती हो, तो अपने प्यार से उसे मोहब्बत के ज़रिए बदल सकती हो, तुम उसे अपने प्यार मोहब्बत के ज़रिए बदल सकती हो। फिर औरत की सारा मामला समझ में आ गया और औरत वहाँ से चली गई और अपने शौहर के साथ हंसी खुशी से ज़िंदगी बसर करने लगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने वाक़या आपको बताई ताकि अगर कोई शख्स जुल्म भी करता है या नमाज नहीं पढ़ता है या कोई भी मामला आपकी ज़िंदगी में हो जो आप अपने शौहर को बदलना चाहते हैं, तो ये वाक़या उन लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि एक जानवर को उसने अपने प्यार मोहब्बत से बदल दिया, तो फिर तो ये एक इंसान है। कोशिश ये करे कि अपने शौहर से प्यार और मोहब्बत करे, अदब से बात करे, उनका एहतराम करे। उनकी बेइज्जती करने पर बहुत बड़ी वईदें हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और अपने मामलों को प्यार मोहब्बत से सुलझाए। गरीबी हर किसी की ज़िंदगी में आती है, गरीबी की वजह से भी बहुत से मसले खड़े होते हैं, तो उसे भी अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश किया करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।